Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu wa tarzalahu. All my students and viewers, I welcome you here in this podcast episode. My name is Dr. Imran Yusuf, and I'm here as a host of this podcast session. It's been an honor that this episode we have invited a very dear friend of mine, a man I will say a live wire when it comes to teaching, when it comes to his interaction with the students, not only with the students but also the friends and the family. There is a famous saying that Nelson Mandela said that education is the best way to change the world. And I think I believe in this. And my father used to say that teachers are the torchbearers of society. A personality to whom I will say Henry Adams once said that teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. A person, I'm very much sure that by this quotation of Henry Adams, many, if not few, have come to conclusion for whom I am talking right now. A person, well, I call him a man with a golden neck. He has acquired 17 gold medals, if I'm not wrong, and he was the best topper in every year of the medical final year up to final year, from first year to final year. He was not only the best student of every year, he was the best graduate of Heaven Medical University, and the candidate of President Gold Medal and the pride of Pakistan. He has always make his family proud, and this is the pride moment for the Royal Student Council that we have invited him. A person who's always, comes when it comes to his energy. He is always energetic. He is innovative. He is always enthusiastic. One of my dear friend, none other than Dr. Muhammad Ali Awad. Thank you, Sir, sir. I was directly waiting for the introduction to get in, and it was so well written, and you have explained so many things so in so detail that I got blushed in the ruddy cheeks. Thank you so much for the kind introduction and for having me here today. thank Thank you you so very much. much, ladies and gentlemen. This was the most awaited podcast. We were planning this for years, for 2 years almost, but because he had a lot of busy schedule, and he is not only he's the talk of the town, I will say, because he is one of the renowned personalities now among the students, living in the hearts of many. डॉक्टर अली, आपसे पहला पहला सवाल जो मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें, और वो लोग सुनना भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आज हमें मौका मिला है कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपने मेडिकल फील्ड में ज्वाइन किया, क्योंकि तारुफ तो मैंने आपको करा दिया है, साइड बाई साइड वो पता लगता रहेगा, जब पहले आपने मेडिकल कॉलेज में जाना था, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत से लोग प्री मेडिकल के आपको देख रहे हैं, कैसे पता लगा आपको कि यार दिस टाइम टू बी अ डॉक्टर? वेल, टू बी फैक्ट, जब कभी भी इंसान 9th में या 10th में होता है या एफएससी की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, तो एक ऐसा ट्रांजिशनल मोड आता है जिस टाइम पे उसने डिसाइड करना है वेदर ही हैज़ टू ऑप्ट फॉर द बायोलॉजी और ही हैज़ टू ऑप्ट फॉर द मैथमेटिक्स। तो पहले तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि अगर मैट्रिक में मैथ्स में ज़्यादा नंबर आए तो मैं मैथ्स ले लूँगा, बायो में ज़्यादा आए तो बायो ले लूँगा। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे मैथ्स में 74 थे आउट ऑफ 75 एंड बायो में 75 थे आउट ऑफ 75। तो एक नंबर तो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने कहीं पे देखा कि यार किसी तरीके से अपने पैशन को या एप्टीट्यूड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उससे कहा व्हेनेवर यू आर ऑप्टिंग फॉर द एप्टीट्यूड, तो हमेशा ये देखना है आपने कि आपका पैशन तो हो, लेकिन साथ में उसके आपके इमोशंस भी जुड़े होने चाहिए। माय फादर ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन हिज एरा, और मेरी मदर वो खुद टीचर थी। माय फादर कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर ड्यू टू सम रीजंस। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता था बट मैं नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीजन, तो समहाउ मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट भी है इस फील्ड में, मेरे फादर ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर, तो व्हाई नॉट टू ऑप्ट फॉर दिस फील्ड। इन द बिगिनिंग वो कहते हैं कि शुरुआत ऐसे ही की थी मजबूरी से, बट अब अच्छा लग रहा है। व्हेन आई वेंट इनटू द मेडिकल स्कूल तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर एक चीज़ को कोट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार यू आर सो लकी, यू आर सो ब्लेस्ड। लेट्स से सर आप कुछ भी बनाते हैं तो आप कभी भी उसके अंदर किसी को इंटरवीन नहीं करने देंगे, आप अपनी तरफ से बेस्ट बनाएंगे। एंड अल्लाह ऑलमाइटी ने इंसान को बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएट किया है, और उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि तुम इंटरवीन करो, और मेरी बनाई हुई क्रिएचर के साथ तुम जिस तरीके से इसको तबादला करना चाहते हो, ऊपर नीचे सर्जरी एवरीथिंग तुम करो। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस।
So yes, somehow I was destined to be a doctor, I guess. And कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस थे, कहीं ना कहीं मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, और कहीं ना कहीं शायद दिल के अंदर कोई स्पार्क था that I should become a doctor. ऑलराइट, वेरी वेल सेड डॉक्टर अली। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग इनटू योर मेमोरी, पीपिंग इनटू योर मेमोरी पास्ट, your memory days, the golden days when you were more young. You, mashallah, looking very young today. Just take it as a No, compliment. I am young, I guess. Take it as a compliment. Take it as a compliment. Thank you. So, when you enter into your medical school, the very first day, what was your feeling? I think that is very important. Why? Because this is probably more relatable to those who are going to come into the medical college, for example, and all the other students who have just in the medical school, they have entered into medical university. I think this answer of your is going to be more relatable to them. So well, I feel like when I got to know that I'm going to become a doctor soon. तो जैसे पाकिस्तान के अंदर कॉमन है कि जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उस दिन से आप डॉक्टर साहब तो बन जाते हैं। तो वो एटीट्यूड तो वही था डॉक्टर वाला। फिर पहला दिन आया, यूं ही मैं मेडिकल कॉलेज में इंटर हुआ, ये मेरे मेडिकल स्कूल के एक दिन से पहले मेडिकल हॉस्टल का रात का दिन था, और मुझे एक कदावर नौजवान दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि वो लड़के इधर आओ। तो मैं उनके पास गया, वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि इस फुटबॉल को दोनों हाथों में पकड़ के खड़े हो जाओ। मैं फुटबॉल को पकड़ के खड़ा हो गया, जबकि मेरा बैग अभी भी कंधों पे था, और कहते हैं कि खड़े रहो, और मैं खड़ा रहा। अचानक 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझे कहा कि रात को कमरा नंबर 220, 222 व्हाटएवर इट वाज, आपने वहाँ आना है। तो कुछ उस रात का किस्सा तो कुछ ऐसा ही था। खैर फिर हमारी कुछ फूलिंग हुई, कुछ इंटरेक्शन हुआ। द डे आई एंटर्ड इनटू मेडिकल स्कूल, आई वाज वही वाइट कोट पहना, टाई लगाई, शूज पॉलिश किए, एंड आई वाज फीलिंग लाइक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। मैंने जा करके एक जो है वो एक एक मैं अपने आप को वो समझ रहा था जैसे वो ग्रेज एनाटॉमी में कोई सर्जन सर्जरी परफॉर्म करने जा रहा होता, तो मैं इस तरीके से इंटर हो रहा था। जब मैं इंटर हुआ तो मैंने पूछा लेक्चर थिएटर कहाँ है, तो मेरे साथ भी वही हुआ जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में हुआ था। उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर, मैंने कहा जी फर्स्ट ईयर, एंड दे टुक मी टू दी सेकंड ईयर्स क्लास। वहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत फूलिंग का हिसाब रहा। लेकिन सबसे फनी इंसिडेंट कब हुआ, जब हम किताबें खरीदने गए। सीनियर्स के साथ मैं किताबें खरीदने गया, तो फर्स्ट ईयर की किताबें हम लेने लगे। उन्होंने एनाटॉमी लेके दी, फिजियो लेके दी, वो बायोकेमिस्ट्री लेके दी, एम्ब्रियो लेके दी और हिस्टो। मैंने कहा यार इसमें मेडिसिन और सर्जरी कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है, ये तो आपने फाइनल ईयर में जाकर के पढ़नी है। बट स्टिल आई फील लाइक मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं इस फील्ड के अंदर आया, और मैं वो दिन कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। That was a quite charming day, I guess. I totally agree and endorse your whatever you said. डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आपने माशाल्लाह इन प्री मेडिकल स्कूल यू टॉप, और कमाल आजिज़ी से आपने कहा कि आपके मैथ में भी 74 थे और बायो में भी 75। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरत भी हुई कि आपने माशाल्लाह आजिज़ी से, आइजाना जो आपकी अदा है, उसने मुझे काफ़ी मुतासिर भी किया है। को ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा वैसे 74 और 75 में। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप प्री मेडिकल स्कूल से टॉप कर रहे हैं, मैट्रिक में भी आपने टॉप किया। आज मैं आपकी तरफ से और आपकी बैठे हुए आपके इस प्रेजेंस में जो सामने हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बात करना चाहता हूँ, टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल दोज व्यूअर्स, दिस पॉडकास्ट इज फॉर देम, इट्स नॉट फॉर यू। बिल्कुल सर। यू आर द टॉप, यू नो, द टॉप, वन ऑफ द टॉप रैंकिंग स्टूडेंट, the cream of Pakistan. So basically, our effort is to make it more relatable to every student who is above average or just average, so that he can, learn from you, and he can take guidance from you, from your path, and he can what he wants to achieve. He thinks that it is achievable. That is very important. Achievable होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी बात की कि आप 9th और 10th में भी टॉपर थे, फिर एफएससी में भी टॉप रैंकिंग का एक सिलसिला रहा। मुझे ख्याल आया कि कहीं आप जब बोर्ड टॉप कर रहे थे तो एग्जाम में सिर्फ आप ही एक स्टूडेंट थे या और भी स्टूडेंट थे वहाँ? सर एक्चुअली सिंस मेरी फैमिली में मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र रहा है, मेरे छोटे बहन भाई भी डॉक्टर हैं। मेरा छोटा भाई बड़ा पंक्चुअल स्टूडेंट है, डॉक्टर घोर, और बड़ा ही लाइक है माशाल्लाह। अभी उन्होंने यूएसएमएल क्लियर किया और सारा कुछ। तो वो अक्सर हंसते हुए कहता था, जब भी रिजल्ट आता था वो कहता था, अली भाई या तो आपका पेपर चेक करने वाला कुछ कि पेपर चेक करता था आपका,
या कुछ शायद आप कोई इसमें कुछ ऐसा वो करते थे, क्योंकि या आप मैं क्लास में अकेले स्टूडेंट थे तो आप भी टॉप कर जाते क्योंकि होंगे। उसके उसके ये था कि शायद मुझे लगता है कि अली भाई आप अकेले ही भाग रहे हाँ हैं। हाँ। उसकी रीजन थी एक सर, उसकी रीजन ये थी कि मैं पढ़ता तो था, लेकिन मैं उतना ज्यादा नहीं पढ़ता था। ये है, हर टॉपर यही कहते हैं, तो शायद आज सुनने वाले ये समझेंगे कि सर भी वही बोल रहे हैं, लेकिन इट्स अ फैक्ट सर, मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ता था, बट जो मैं पढ़ता था मैं मेक श्योर करता था कि मैं सिर्फ पढ़ूं उस टाइम। वाह। मैं मतलब उस टाइम पे मैं डिस्ट्रैक्शंस को, इन सारी चीजों को मैं साइड पे रखता था, और मैं रिग्रेट को एज अ फ्यूल यूज करता था सर। मैं अपना वो वाह। वेस्ट किया गया टाइम जो पिछले में 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने मैंने वेस्ट किए होते थे, मैं उसको एज अ फ्यूल यूज करता था। यार ये अगर अभी इंजॉय कर रहे हैं तो पिछले पूरा साल तो ये पढ़ते रहे, लेकिन मैं उस टाइम पे वेस्ट करता रहता था। तो अगर वाह। मुझे भागना है, और दूसरी बात मेरा मानना यह है सर, अगर हमने ए से बी पॉइंट तक पहुंचना है और बी तक मैंने पहले पहुंचना है, तो मैं अगर ए से उन्हीं के साथ शुरू करूंगा और उसी रास्ते को अख्तियार करूंगा जिसको सबने अख्तियार किया है, तो शायद मैं बी तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाऊंगा। आई हैव टू अडॉप्ट सम वे अराउंड द सी पॉइंट। तो मेरे Alright. हमेशा से वो एक सी पॉइंट रहा है, और मैं बड़ा ब्लेस रहूंगा, मैं बड़ा खुशकिस्मत रहूंगा कि अगर आज स्टूडेंट को उसको मैं डिबंक कर सकूं उन चीजों को, कि किस तरीके से एक मेडिकल स्टूडेंट को उस पाथवे को Alright. एक्सप्लोर करना चाहिए। ऑलराइट। ऑलराइट। डॉक्टर साहब, पहले दिन आए तो ख्याल था कि आप एक्सेल करेंगे मेडिकल से? नहीं सर, ऑनेस्ट आंसर। ये मैं आपको फैक्ट बताऊंगा सर इमरान, क्योंकि आप दोस्त भी हैं बहुत प्यारे। मैं आपको एग्जैक्टली फैक्चुअल बात बताऊं, मैंने कभी मेडिकल कॉलेज में ये सोचा ही नहीं। वाह। हाँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर इंटर हुआ तो मैं खुद को ये समझता था कि मैं 30 मार खान हूँ, एबटाबाद बोर्ड का टॉपर हूँ, तो मैं मतलब मैं अपनी तरफ से ये था कि मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट हूँ और ये वो फलां। बट जब मैं बैठा तो मैं एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि जो आगे बैठा, अगर मैंने उससे पूछा तुम कहाँ से हो, सवाबी बोर्ड का टॉपर हूँ सर, राइट मर्दान बोर्ड का टॉपर हूँ सर, लेफ्ट फेडरल बोर्ड का टॉपर हूँ, पीछे पिंडी बोर्ड का टॉपर हूँ। मैंने कहा यार ये टॉपरों का टॉपर, ये तो कोई दुनिया ही कोई अजीब है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बट जो भी मेडिसिन के अंदर जाता है दैट इज द क्रीम ऑफ द नेशन, तो वहां पे तो वो सारे हैं। तो उस दिन मुझे अपनी हकीकत का पता चला कि मैं तो एक ऐसे तबके से बिलोंग कर रहा हूँ कि अब हम सब हो गए हैं बराबर। वो तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, अब हम सब टॉपर हो गए बराबर। उसके बाद फिर मैंने अपनी उस सीट को पकड़ा जिसके लिए मैं बना था, तो मैं बैक बेंचर बन गया। मैंने कभी इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि मैं टॉप करूंगा, एक्सेप्ट फॉर वन डे माय फादर। मुझे याद पड़ता है कि मेरा जो रैंक आया था वो 486 के अराउंड था जब मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ। तो मेरे फादर से मैंने पूछा कि, मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं एग्जाम्स किस तरीके से दूं, तो उन्होंने कहा कि यू डोंट हैव टू बी एन ऑर्डिनरी डॉक्टर, आपने इस 486 को रैंक 1 पे लाना है। मुझे लगा फादर मजाक कर रहे हैं, मुझे लगा फादर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नामुमकिन सी बात है। बट देन समहाउ कुछ ऐसा हुआ, पहला जो ईयर था उसमें तो अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग रही। मैंने ना तो इतनी ज्यादा एफर्ट की थी, ना मैं इस चीज को बहुत ज्यादा वो कर रहा था, बस साउंड होकर के पढ़ रहा था, अच्छे तरीके से पढ़ रहा था जो मुझे लगता है। और फिर इन द सेकेंड ईयर ऑन मैंने इस चीज को डिसाइड किया कि आई हैव टू टेक दिस परसिस्टेंटली, और मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई करके दिखाना है। तो नॉट इन द फर्स्ट ईयर मैंने कभी नहीं सोचा था आई विल बी अ टॉपर एनी टाइम। और जब मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मैं 5 साल मैंने उसको टॉप किया, तो मेरे ख्याल में ये मेरी जिंदगी का अनबिलीवेबल मोमेंट था, और मेरे फादर की, मेरे मदर का इसमें बड़ा एक रोल है। ओके। अभी आपने कहा कि आप एक्सीडेंटली फर्स्ट ईयर में जब आए तो आप उसको बिलीव नहीं था कि आप बिल्कुल टॉप सर, करेंगे। ऑलराइट। बिल्कुल। लेकिन पहले साल जब आपने टॉप किया तो क्या आपके अंदर ट्रांजिशन आई? क्या पर्सनैलिटी परसेप्शन आपकी चेंज हुई? सर मेरे ख्याल में जो, सर कभी भी कोई भी अगर आप चीज अचीव करते हैं, जो पहली चीज आपके अंदर आती है वो एक सेंस ऑफ बिलीफ आता है सेंस आपके ऑफ अंदर। बिलीव। वाह। जो आपके अंदर खूबसूरत एक बात। आपके अंदर एक चीज आती है कि आप शायद आप ये काम कर सकते हो। हम्म। जैसे वेन डीजल का एक फेमस कोट है, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स हु इज बिहाइंड द व्हील। कि मतलब इंसान को लगता है कि यार अगर मैं ये कर सकता हूं तो शायद मैं इससे आगे भी कर सकता हूं। जैसा कि उसके बाद भी मैंने काफी सारे डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए अपनी लाइफ के अंदर। जब मुझे ये लग रहा था कि मैंने ये टॉप किया है, तो मुझे लग रहा था कि यार अगर मैं ये काम कर सकता तो एटलीस्ट आई कैन डू एनीथिंग। तो पहला जो चीज इंसान के अंदर आती है वो आती है सेंस ऑफ बिलीफ, सेंस ऑफ अचीवमेंट। दूसरी चीज जो आपको मुनफरिद करती है वो ये है कि अगर आप इतने डिफिकल्ट फिल्टर से गुजर करके आगे जा पा रहे हैं, तो आप अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो यू कैन एम गुड। अगर मैं समझता हूं कि मेरी अचीवमेंट में अगर मेरी मेहनत का रोल रहा है 10% सर, तो 90% रोल दो चीजों का रहा है मेरे पीछे। एक, मेरे गोल का सर, मेरा एम होता था कि मैंने टॉप करना है, और दूसरा मेरी नीयत का सर। मेरी नीयत पक्की होती थी कि अब अगर ये मैंने साल लगाना है, ये मैंने टाइम लगाना है, तो उस टाइम को मैंने सही करके लगाना है। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करता हूँ अक्सर, मुझे लगता है कि आज हम जिस चीज को हम मिस कर रहे हैं वो है इंटेंशन सर। राइट इंटेंशन नहीं है, और गोल सेटिंग बड़ी जरूरी है। आपको कुछ चाहिए मुझसे सर, आपको वो मांगना पड़ेगा।
और आपको खुद से कुछ चाहिए, मसलन मैं खुद से चाहता हूँ ना कि मैं टॉप करूँ, तो खुद से मांगो, आस्क योरसेल्फ। हम पहला सवाल नहीं करते खुद से, हम मांगते ही नहीं सर, और अगर मांगते हैं तो उस जस्तजू से नहीं मांगते। कहते हैं माँ भी तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। मांगना है तो उस तड़प से मांगो, उस तड़प से मांग के फिर खुद को उस काम के ऊपर पक्का रखो। दो चीजें बड़ी जरूरी हैं सर, एक एम करना और स्टार्ट लेना, दूसरा उस एम किए हुए और स्टार्ट की गई चीज को आगे लेकर के चलना। शाहरुख खान ऑलवेज से दिस कि यार मकाम पे पहुंचने के लिए सब मेहनत करते हैं, मकाम पे पहुंचने के बाद मेहनत किए रखना हाँ, ये जिसको जरूरी है कंसिस्टेंसी सर, कहते हैं कंसिस्टेंसी या कहते हैं परसिस्टेंस कहते सर। हैं। बिल्कुल सर। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी आपने की, एक बिलीव का होना, सेंस ऑफ बिलीव का होना कि आई कैन अचीव एवरीथिंग या आई कैन डू दिस। अगर बिलीव हो तो आप यू कैन टच द पिनिकल ऑफ ग्लोरी। बिल्कुल So, how do you think, as a teacher and as a student, how important is to make us believe that I can do this? And what do you think that how a student can make this belief, despite the fact that he is not a topper, despite the fact that he is an average student, despite the fact that he has not been exposed to that circumstances which have been you have been exposed to? वेरी गुड क्वेश्चन सर, दिस इज आई वुड लव टू आंसर दिस Please. क्वेश्चन सर। एक स्टूडेंट है सर थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, जिसने थोड़ा सा वक्त का ज़या भी कर लिया है, जिसने शायद उस तरीके से उसको अचीवमेंट्स नहीं मिल सकी जिस तरीके से वो अचीव करना चाहता था, बट अल्लाह ताला ने स्टिल उसको मौका दिया और वो अब एक मेडिकल की फील्ड के अंदर आ चुका है और वो डॉक्टर बन रहा है सर। बिलीफ कितना ज़रूरी है उसके लिए सर, और बिलीफ कैसे आएगा उसके लिए? सबसे पहले सर उसके लिए अपने वाई को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि मैं ये करना क्यों चाह रहा हूँ सर। एक छोटा सा किस्सा है सर, एक दफ़ा एक बच्चा था, बच्चा 10वीं क्लास में था, उसको समर की छुट्टियां हुई, उसके अब्बू का हैंडीक्राफ्ट का छोटा मोटा सा कारोबार था। जब हैंडीक्राफ्ट का छोटा मोटा सा कारोबार था तो फादर ने कहा कि तुम्हें तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां हैं, तुम मेरे साथ गांव में चलो, वहां से हम हाथ से बनी हुई चीजें खरीदेंगे, आगे वापस शहर ला के बेचेंगे। वो गाँव चले गए। गाँव में बैठे वो एक छोटी सी दुकान के ऊपर चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए उसके अब्बू को दिल का दौरा पड़ा, उसके अब्बू फोत हो गए। बच्चा 10वीं क्लास में था, फौरी तौर पे अब्बू को अस्पताल ले गया। गाँव में अस्पताल था नहीं, एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी वालों ने कहा कि इसको, जैसे कहते हैं, लाहौर ले जाओ। उसको वहां से एक शहर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने उसको कहा बड़े अस्पताल में लेकर के जाओ, उसको बड़े अस्पताल लेकर के जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर से वही बात कही कि अगर आप इसको 1 घंटा पहले लेकर के आते हम कुछ कर सकते थे। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट स्टूडेंट डिड नॉट आस्क द डॉक्टर व्हाई माय फादर गॉट किल्ड। उसने एक सवाल पूछा, उसने कहा ये बड़े अस्पताल यार छोटे इलाकों में क्यों नहीं होते? वाह। उसने कहा ये बड़े अस्पताल छोटे इलाकों में क्यों नहीं होते हैं? दैट डे ही डिसाइडेड मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने गांव के अंदर ही एक छोटा सेटअप बनाना है। और इसकी कई मिसालें आपको मिलेंगी। कई लोगों ने अपनी माओ के नाम पे फिर शौकत खानम जैसे कैंसर हॉस्पिटल तक बने। कई लोगों ने अपनी माओ के नाम पे फिर पाकिस्तान के अंदर PKLI बना, फिर पाकिस्तान के अंदर कितने सारे ऐसे सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बना। तो ऐसी चीजें बनी। तो मेरे ख्याल में उस वाई को आइडेंटिफाई करना सर बड़ा जरूरी है। दूसरी बात सर, चाम। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाम के लिए करना चाहते हैं, ये चीज चूंकि आपको अच्छी लगती है इसलिए आप कर रहे हो, ये मेरे ख्याल में इतनी जबरदस्त चीज नहीं है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए रुकना होगा आपको सर। अब ये बड़ा हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट को सब कहते हैं। हुसैन बोल्ट कहता है कि यार मुझे वो 10 सेकंड भागते हुए तो पूरी दुनिया देख रही है, उन 10 सेकंड के पीछे जो मैंने 4 साल प्रैक्टिस की उसका तो कोई नहीं देख रहा। मेरे ख्याल में स्टूडेंट को पहले अपने उस वाई को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उस प्लान के साथ स्टिक टू रहना कि मैंने ये करना है, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे चीजें छोड़ना जो आपको फौरी तौर पे रिवॉर्ड दे रही हैं, उनको छोड़ के डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ मूव ऑन करना, ये बड़ा जरूरी रहेगा सर। ये बड़ा प्यारी बात आपने की है डॉक्टर अली, और मैं इसको इंडोर्स इसलिए करूंगा कि ये जो इंटेंस ग्रेटिफिकेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, ये दोनों बड़े प्रिवेलेंट हैं मेडिकल सोसाइटी के अंदर भी। और वो लोग जो हमें देख रहे हैं या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएं, वो अब उनके दरमियान एक फॉल्स बिलीफ पैदा हो गया है कि मुझे उम्मीद है कि हेडक्वार्टर से कॉल तो नहीं होगी। नहीं, तो यानी एक फॉल्स बिलीफ पैदा हो गया है कि शायद डॉक्टर्स अब उस तरीके से अर्न नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, लेकिन डॉक्टर साहब डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए फोरसाइट विजन का होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सर। Without foresight vision, you cannot perceive the things that you can perceive, or a person who is outshining the others can perceive earlier than the others. और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि एक्सेल करना है हमने मेडिकल लाइफ में। हम उसी को लेकर बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं,
मैं आपकी बात को, आपकी सोसाइटी, आपकी पर्सनैलिटी को आज थोड़ा सा ओपन करना चाह रहा हूँ, डिकोड करना चाह रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को पता लग सके कि एक टॉपर बनने के लिए क्या सलाहियतें होनी चाहिए और क्या हर आदमी टॉपर बन सकता है कि नहीं। आप ऑब्वियसली हर आदमी तो टॉपर नहीं होता, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। लेकिन क्या क्वालिटीज होनी चाहिए डॉक्टर्स की उसके हिसाब से, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट, दो चीजें अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट that helps you in outshining others, whether it is discipline or it is intelligence. सर मैं ये समझता हूँ कि मेरी, चूंकि आपने ऑप्शन ही 2 दे दिए, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सर डिसिप्लिन। Okay. वंस आई डिसाइड फॉर समथिंग, तो जिस इंटेंसिटी के साथ मैं उसको शुरू करता हूँ सर, उस इंटेंसिटी से 10x में उसको खत्म करता हूँ सर। वाह। अगर आप मेरे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के मार्क्स देखेंगे तो मैंने 7 नंबर के मार्जिन से टॉप किया था। अगर आप फाइनल ईयर के नंबर्स को देखेंगे सर, मैंने 35 नंबर के मार्जिन से टॉप किया था सर। और ये मैंने कॉन्स्टेंटली चीजें चेंज की थी विद द ग्रोथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब मैं एक बड़ी ईजी बात, मेरे काफी स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं, मैं उनको अक्सर एक चीज कहता हूँ। एक दफा एक गाँव में एक बंदा सर पे सेब रख के तीर चला रहा था, और तीर चला के वो सर पे जो सेब था उसको चीर देता था। लोग कहते थे क्या जीनियस आदमी है यार, ये कमाल का आदमी है। वो कहता था यार इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ये जीनियस नहीं है। अच्छा, फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। उसे कहा अगर इतना ही तुझे प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस कर। उससे प्रैक्टिस किया सर, और वो एक अंगूर को सर पे रख के उस पे तीर चलाने लग गया विद द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं स्टूडेंट्स को क्लास में ये कहता हूँ, इंटेलिजेंस सर, एक इंटेलिजेंट बंदे को अगर आपने बीट करना है, एक जीनियस इंसान को अगर आपने बीट करना है, तो आपने अपने वर्क को 2x करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस का तोड़ है सर हार्ड वर्क का तोड़ नहीं है सर। एक हार्ड वर्किंग बंदे को आप नहीं हरा सकते। अक्सर एक स्टूडेंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा हम इस्केमिक हार्ट डिजीजेस पढ़ते हैं, तो मैं एक सिनेरियो अक्सर बयान करता हूँ। A patient 62-year-old comes in the ER with the complaint of retrosternal chest pain radiating to left arm associated with nausea, vomiting, sweating, shortness of breath. Do I know it? लेकिन मैंने एक सांस में इसको बोल दिया। तो क्या किया सर मैंने इसको बोलने के लिए? क्या मैं जीनियस हूं? नहीं, मैंने प्रैक्टिस की सर। मैंने 10-12 दफा खुद को सुनाया कि मैं लफ्ज गलत ना बोलूं इसके अंदर। अगर वो स्टूडेंट इस प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ सकता है, हार्डवर्क के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ सकता है, ही कैन एस इट, डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरी चीज सर, डेडिकेशन के अलावा, डिसिप्लिन के अलावा, जो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टेंटली थोड़ी एफर्ट्स पुट इन करना। आपने अक्सर देखा होगा गांव के घरों में सर, परनाले से थोड़ा सा पानी गिरता रहता है, नीचे सीमेंट होता है सर, इस सीमेंट में भी सुराख कर देते हैं सर। एक दिन में आप जितना शावर का प्रेशर मारें, एक दिन में वहां पे सुराख होने वाला नहीं। तो वो कहते हैं ना, क्या वतन अजीज मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो चश्मा निकालने के लिए कॉन्स्टेंटली एड़ियों का रगड़ना जरूरी है सर। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जब तक आप खुद से मांगोगे नहीं, इफ यू वांट समथिंग सर आस्क फॉर इट, इन नेचर विल गिव यू, टेस्ट ट्रस्ट मी। इफ यू वांट समथिंग आस्क फॉर इट। ऑलराइट सर, ये तो बड़ी अपने जबरदस्त बात कर दी है। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन, डिलीजेंस, ये ऐसे लफ्ज हैं जो हम बहुत सुनते हैं। इसके साथ साथ दो लफ्ज और भी आते हैं, एक होता है विनर, एक होता है लूजर। और डिवोशन और डेडिकेशन के बावजूद एग्जाम्पल्स सोसाइटीज के अंदर प्रेवलेंट है। डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, डिस्पाइट देयर डिवोशन एंड डेडिकेशन, they still feel loser. I mean, they can't overcome. They feel defeat, or they don't have the courage, or they don't have the self confidence. Maybe not self confidence. They cannot achieve their target what they wanted to achieve. एक वो शिकस्त का सामना, एक फेलियर का सामना उनकी सोसाइटी में रहता है। अब ये स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, आपके लफ्ज़ों से उनकी ज़ाहिर बात है एक ब्लड प्रेशर के अंदर एक चेंज, एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी ओवर ड्राइव हुई होगी। हो सकता है देखते देखते कुछ लोगों ने किताबें खोल ली हों। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात आपके तवज्जो से ये जानना भी ज़रूरी है कि इतनी डिवोशन और डेडिकेशन के बावजूद विन और लूज का कॉन्सेप्ट भी प्रेवलेंट है सोसाइटी के अंदर है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होता है जो हमें सुनने के फौरन बाद किताबें भी खोल लेते हैं, डिवोशन भी लेना शुरू हो जाते हैं। इंटेलिजेंस पता नहीं हो ना हो, ये तो एक ऐसा सर दर्द की तरह का है कि जिसके कोई आला नहीं है मयार इसको देखने के लिए। आजकल तो दौर भी इंटेलिजेंस का नहीं रह गया, आईक्यू लेवल से ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन का, इक्वल लेवल का। जो इमोशनली जितना स्टेबल होगा वो उतना ही एक्सेल करेगा। बिल्कुल। तो आपके नज़दीक सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? How will you say a person is a winner or you will say a person is a loser? सर एक बड़ी जबरदस्त बात है यहाँ पे।
सबसे पहली बात ये है सर कि विनर या लूजर का कॉन्सेप्ट किसी भी एग्जाम में अगर रखना है तो जहां पर सर कामयाबी आनी है, जहां पर आपने उस एग्जाम को एक्सेल करना, वहां किसी न किसी ने हारना तो है सर। अब यहाँ पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज ये है सर कि आपने कितनी डेडिकेशन के साथ अपने कितने एफर्ट्स आपने उसमें पुट इन किए हैं और कितनी चीजें आपने उसमें कितनी आपकी मतलब अपनी तरफ से कितनी लापरवाही है। एक ह्यूमन एरर का कॉन्सेप्ट आपने लाजमी रखना है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हम एक्स फैक्टर रखते हैं आपने और सर्कमस्टेंसेस हम अलग से रखते हैं। मिसाल के तौर पे हम बिरयानी बनाना चाहते हैं, बिरयानी बनाने के लिए हमने चावल लिए, हमने तड़का लिया, सारा कुछ किया, और अगर सारी चीजें हम जिस तरीके से रेसिपी के अंदर होनी चाहिए थी वो रखते हैं तो देयर इज ऑलमोस्ट 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो खाना सही ही बनेगा। गुड, दैट्स इट सर। और अगर हम उसमें हल्की फुल्की सी भी ऊपर नीचे करते हैं तो वो काम खराब हो सकता है। सबसे पहली बात, जो मेडिसिन की रेसिपी है या जो मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ की रेसिपी है, उसमें 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है सर। सबसे पहली चीज उसका गोल होना जरूरी है, व्हाई ही इज ट्राइंग टू डू इट। दूसरा सर, उसकी रूटीन का होना बहुत जरूरी है, एक रूटीन को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। तीसरी चीज सर, उसका एम्बिशन सर टूवर्ड्स हिज स्टडीज, व्हाई ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाई ही वांट्स टू सर्व द ह्यूमैनिटी, वो क्यों ये काम करना चाहता है सर, ये बड़ा जरूरी है। देखिए ये आसान नहीं होता सर, ये आसान नहीं होता कि आप सारी क्लास आपकी जगह यशी मार रही है और आप 5 साल के बाद मिलने वाले एक रिवार्ड के लिए आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आप इमेजिन करें सर, अब अगर कोई बच्चा पूरे 5 साल नहीं पढ़ता और आखिरी 3 महीनों में पढ़ने के बाद वो ये कहता है कि पूरे 5 साल के कोर्स को मैंने खत्म करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। हाँ, तुमने दिन रात एक किया, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्टेड वाज रियली लेट। अगर आप 120 डिग्री के ऊपर सर 35 मिनट के लिए रखेंगे ना मुर्गे को सर, वो रोस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको 5 मिनट के लिए भी रखेंगे ना, वो भुन के काला स्याह हो जाएगा सर। सही मोमेंट का इंतखाब करना बड़ा जरूरी है। मेडिकल, जैसे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जैसे यूएसडी है, डॉलर है, करेंसी है, बिटकॉइन एक करेंसी है आजकल के दौर में, स्टूडेंट के पास सबसे तगड़ी करेंसी कौन सी है सर? टाइम। वाह, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर हिम। द अर्ली ही स्टार्ट्स, द बेटर द चांसेस आर दैट ही इज गोइंग टू अचीव इट, ही इज गोइंग टू एस इट। फिर दूसरी बात ये है सर, हमारा मोटिव चेंज हो गया सर। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को सुनता हूँ, वो ये कहते हैं हम अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आप कैसे उनको हेल्प कर रहे हो? सर, हम विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग, विद द हेल्प ऑफ समथिंग, हम अपनी पॉकेट मनी पूरी कर रहे हैं और अपने फादर को हेल्प आउट कर रहे हैं। सर टेल मी वन थिंग, यू आर अ फादर योरसेल्फ। अगर एक फादर अपने बच्चे की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए अफोर्ड कर पा रहा है, क्या उसके लिए पॉकेट मनी अफोर्ड करना कोई दिक्कत का काम है? डेफिनेटली। तो फिर आपने क्या करना है? आपने अपने फादर को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ाई करनी है। आपने वो एग्जाम एस करके दिखाना है जिस एग्जाम की वजह से आपका फादर प्राउड फील कर पाएगा। फिर मैं अक्सर स्टूडेंट को एक और बात भी कहता हूँ, ये मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट ये बात जानते होंगे कि आप अपने वालिदैन को पैसे देकर खुश नहीं कर सकते। दे हैव अर्न्ड इट, उन्होंने वो कमा लिया है। वो क्या चाहते हैं सर? वो चाहते हैं कि जब आप अस्पताल के अंदर हों और एक उनका बचपन का दोस्त कोई असलम, कोई अकबर उनके पास आया और आकर के उनसे आपने उसको ट्रीट किया और वो घर जाता है और जाकर के कहते हैं तेरा बेटा कमाल का डॉक्टर है। तेरे बेटे के आगे पीछे नर्सें वहां पर देख रही होती है, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी उसका डायग्नोसिस है। उस दिन तुम्हारे अब्बू तुम्हें फोन करके कहते हैं बेटा कैसे हो, और तुम कहते हो अब्बा ठीक, कोई काम था? वो कहते हैं नहीं बेटा, ऐसे ही कॉल की थी। दिस इज द मोमेंट ही हैज वेटेड फॉर। एंड बिफोर द टाइम गेट्स ओवर सर, बिफोर द टाइम गेट्स ओवर, अपने वालिदैन को वो प्राउड फील कराओ। आप पैसे से नहीं करा सकते, आप उनको प्राउड से करा सकते हैं। यहाँ पे मैं सर एक छोटा सा वो एक कपलेट है, वो कहते हैं, और मैं आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, कि इससे पहले कि देर हो जाए, आपको इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहिए। ओके, तो एक अच्छा सा कपलेट है सर, मैं आपकी नजर करूंगा कि एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों। हाँ, मेरी बात होगी। एक मेले में पहुंचा मैं दमकता हूँ, वाह, जी मचलता था हर एक शय को देखकर, जी मचलता था हर एक शय को देख के, वाह, पर मोल दे न सका मैं किसी चीज का। एक अल्लड़ सा लड़का था मैं जिन दिनों, आज मेला सजा है फिर उसी शान से। आज मेला सजा है फिर उसी शान से, जी चाहे या मैं चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, मैं चाहूं तो एक ही पूरा जहां मोल लूं, वाह, पर दिल में अब वो चाह कहां, वाह, और सबसे बढ़ गई अब मैं वो अल्लड़ सा नन्हा सा लड़का कहां। ये तो बिल्कुल ऐसी डॉक्टर साहब बात की है जैसे एक आदमी को गोश्त खाने का शौक हो और जब गोश्त खाने की बारी है तो दांत ना रहे। बिल्कुल यही बात है सर। तो उस वक्त वो गोश्त क्या खाएगा? लेकिन सर मैं तो इमोशनल करना चाह रहा था बच्चों को। वाला लाइटर लोड भी तो लेके आला है सर। सर अब थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि आप टीचर भी हैं और टीचिंग को आपने ऑप्ट किया है।
ये सवाल पुराना हो गया, मैं ये नहीं करूँगा, कुछ हटके। रॉयल स्टूडेंट काउंसिल हमेशा हटके काम करती है। नहीं बिल्कुल तो सर। हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि लर्निंग, स्मार्ट लर्निंग, हमेशा आजकल बात हो रही है स्मार्ट लर्नर और हार्ड लर्नर के दरमियान, स्मार्ट लर्नर या हार्ड वर्कर के दरमियान। सबसे पहले तो आप अपने स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं ये बताएं कि स्मार्ट लर्निंग क्या होती सर ये कॉन्सेप्ट बचपन से दो चीजें जो बताई गई हैं हमें और हमें उनके बारे में गाइड नहीं किया गया। एक कि याद करो, लेकिन याद करने का तरीका किसी ने सिखाया नहीं। वाह। दूसरा, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क ना करो। वक्त स्मार्ट वर्क का है, लेकिन जब बारी आती है स्मार्ट वर्क करने की तो कोई स्मार्ट वर्क बताता नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या है सर? स्मार्ट वर्क ये है कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो। ठीक। हार्ड वर्क ये है कि आप ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी उतने रिजल्ट या उतने ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे या हो कम। उससे कम कर पा रहे ठीक। हो। दुनिया में एक बड़ा कॉमन रूल है सर, 80-20 रूल, कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं 20% जो 80% फल ले जाते हैं 20% मेहनत करने के बाद, और 80% लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 20% नतीजा हासिल कर पाते हैं बावजूद इसके कि उन्होंने 80% मेहनत की हुई थी। मैं स्पेसिफिक रहूंगा टूवर्ड्स द मेडिसिन, टूवर्ड्स द मेडिकल स्टडीज। सबसे पहली बात सर, स्मार्ट स्टडी जो मौजूदा दौर में कही गई है, इसमें आपने इंटीग्रेटेड मॉडल का इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेटेड मॉडल। इंटीग्रेटेड मॉडल, व्हाट इज इंटीग्रेटेड मॉडल सर? मिसाल के तौर पे मैं पढ़ना चाहता हूँ एनाटॉमी, मैं पढ़ना चाहता हूँ फिजियोलॉजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ पैथोलॉजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, हिस्टोलॉजी एंड सर्जरी। गुड। ये कितने सब्जेक्ट्स हो गए सर? 8-9 हो गए सर। बिल्कुल। अब मैं दो चीजें कर सकता हूं, या तो मैं उस सिस्टम की अलग अलग किताबों से जाकर के पढ़ूंगा, या मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक ही टाइम के ऊपर उस सारे के सारे मॉड्यूल को एक टाइम पे मैं कंटिन्यूटी में क्लियर करूंगा। मेरे दिमाग को क्या लगेगा? फायदा क्या है सर? मेरे दिमाग को ये नहीं लगेगा कि मैंने 8 किताबें पढ़नी है, मेरे दिमाग को ये लगेगा मैंने एक चीज पढ़नी है। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग इज सर, द मॉडल ऑफ लर्निंग शुड बी चेंज्ड। अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर हमें कहां से समझ आएगी, मुझे कहां से पढ़ना चाहिए? मैं कहता हूं जहां से दिल करे पढ़ो, लेकिन जहां से तुम्हें समझ आए। अच्छा सर, समझ कैसे आएगी? समझ ऐसे आएगी सर, जब कभी भी कोई आप एक टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद आप उस नॉलेज को अप्लाई करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो मतलब आपको समझ आ चुकी है। क्लास के अंदर बैठे हुए हर स्टूडेंट को यह लग रहा होता है कि मुझे सब कुछ याद हो गया है। नहीं, आपको समझ आया है। अगला स्टेप है याद करना। यू नीड टू मेमोराइज इट, और मेमोराइज के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है सर। मेमोराइज करने के लिए आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, आंखें बंद करो, उसको वापस सुनो। अक्सर आपने बचपन में देखा होगा कि टेबल 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 होते थे, और एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता था और कहा जाता था कि यार देखो सबको कि सब के सब इस चीज को प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों होता था सर? क्योंकि जो न्यूरॉनल पाथवेज आपकी मेमोरी के बन रहे होते हैं, उनको जितना पक्का किया जाएगा उतने पक्के तरीके से वो काम कर सकते हैं। फोर्थ थिंग इज सर, एक्टिव रिकॉल हो गया आपका। एक्टिव रिकॉल के बाद आप आगे जा सकते हैं टुवर्ड्स द अडॉप्टिव लर्निंग। अडॉप्टिव लर्निंग में आप क्या कर सकते हैं सर, कि आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करके जो एक्टिव, जो आपका ये पैसिव लर्निंग का तरीकाकार है, यानी कि सिर्फ किताब को याद करना, उसको छोड़ के आप क्लिनिकल सिनेरियोज बेस्ड लर्निंग की तरफ आएंगे। फिर सर अपने नॉलेज को अप्लाई करना और स्पेस रिपीटेशन करना, हर वक्त उस जोन के अंदर रहना सर, ताकि आपको ना, अगर आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ने, देखिए हर टाइम आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हर टाइम एटलीस्ट आप उस जोन के अंदर रह सकते हैं। और जब चीजें, अब एक स्टूडेंट अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर हमें चीजें भूल जाती हैं, उन्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा छुफ करके ऐसा कोई मंत्र करूंगा कि उनको फौरी तौर पे चीजें याद हो जाएंगी। और इसका एक आसान तरीन जो मैं जवाब उनको देता हूँ वो ये है कि अगर आपको चीज भूल रही है उसको दोबारा याद करो। मैंने कशर कहने बादाम खाए। नहीं सर, बादाम भी अच्छी बात है, बादाम तो फायदा होता है, बादाम हाफजा तेज होता है मेरे ख्याल में। मैंने खैर कम खाए हैं। ओके, आपको तो जरूरत नहीं थी। एक सर स्मार्ट लर्निंग का जो कंसेप्ट है, जो एक रिजर्वेशन समझ लें या एक फॉल्स परसेप्शन समझ लें, मुझे ऐसा लगता है आप इसको एंडोर्स करेंगे कि स्मार्ट लर्निंग में हम जो सुपरफिशियल लर्निंग और डेप्थ लर्निंग में एक फ़र्क है, वो हमने थोड़ा सा उसको ब्लर कर दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट लर्निंग के चक्रों में हम बहुत सी चीज़ों की डेप्थ से डिविएट कर जाते हैं। बिल्कुल सर। आप इस बात को महसूस करते होंगे। बिल्कुल है सर। और क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टूडेंट, और सबसे बड़ी बात ये कि स्मार्ट लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं, क्या ये एप्लीकेबल हो सकती है हर स्टूडेंट के लिए? क्योंकि मिसाल के तौर पे मैंने बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जो शायद, आपने फिरदौस का नाम सुना होगा, फिजियोलॉजी, वो फिरदौस पढ़ते थे तो उनका कंसेप्ट बड़ा अच्छा हो जाता था। लेकिन कुछ ऐसे थे जो घटन जब तक न पढ़े तो तशफ़ी नहीं होता था उनका, एक इत्मीनान क़ल्ब, एक तमानियत का जो एहसास है वो नहीं रहता था, वो कहानी को कोरल नहीं कर सकते थे। तो आप कैसे ऐसे दो स्टूडेंट्स को, जो दो लोग कैटेगरी के लोग हैं,
एक आदमी तो चलो एक शॉर्ट वर्जन को लेके जा रहा है, मैं स्मार्ट नहीं कहूंगा। दूसरा है जो गाइटन को पकड़े बैठा है, ठीक है। आपको सुनने वाले खाली बिश्कीक के लोग तो नहीं है, पाकिस्तान से भी आपके बहुत बड़े फैन फॉलोअर्स हैं। 30,000 40,000 उनके फैन फॉलोअर खाली इंस्टा पे ही हैं, मैं जानता हूँ। और तादाद इतनी है, मैं लिखना शुरू करूँ तो टाइम इसी में खत्म हो जाएगा। Thank तो you, sir. वो क्या आप समझते हैं कि कैसे आप उनको एड्रेस करेंगे, दोनों दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपके सामने? सर सबसे पहली बात यह है कि हम दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक मेडिकल स्टूडेंट की बात करते हैं कि उसको क्या शॉर्ट बुक्स या स्मार्ट वेज की तरफ जाना चाहिए या उसको लॉन्गर वेज की तरफ जाना चाहिए। अब मैं आपको ना गाइटन के साथ में सर मैं आपको स्मार्ट वे या इस तरह करते हैं, रॉबिन्स के साथ में पैथोमा ले लेते हैं बिकॉज दोनों ऐसी किताबें हैं कि जिनको मैं दोनों को बहुत ऑन करता हूँ सर। ठीक। रॉबिन्स भी बड़ी अच्छी लिखी गई है पैथोलॉजी की किताब, और सर पैथोमा भी हुसैन सत्तार साहब ने बड़ी खूबसूरती से बिल्कुल लिखी है ठीक। सर। लेट्स से मैं पढ़ना चाहता हूँ और अब इसको मैं स्मार्टर वे में कैसे पढ़ पाऊंगा सर। प्लीज। मैंने रॉबिन से एक यूनिट को पढ़ा ओके और पूरा यूनिट मैंने एक्सप्लेन किया, ओके पूरा यूनिट मैंने अपने आप को समझाया और पूरा यूनिट में पढ़ चुका हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। वही यूनिट सर मैं उसी टाइम पे पैथोमा से पढ़ूंगा। ठीक। देयर हैड बीन फ्यू थिंग्स सर, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो रॉबिन्स ने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की होंगी। बिल्कुल ठीक। जैसे कि मेटास्टेसिस का वर्ड हर जगह यूज होता है सर, हम्म, लेकिन कोई इसमें जिक्र यहाँ पर नहीं होता कि ये जब ट्यूमर सेल मेटास्टाइज करते हैं तो उसमें कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक लूजनिंग, हाँ। लॉस ऑफ फीकल एडेन, Invasion of the दूसरा मेटालोप्रोटीनियेसिस British Wine, ठीक। जो कि इन्वेड कर रहे होते हैं बेसमेंट Basement मेम्ब्रेन membrane को। को, ठीक ठीक। अब रॉबिन्स में ये दो चीजें लिखी गई हैं, पैथोमा में एक लिखी गई है दूसरी नहीं है। मैं उसको उठा करके पैथोमा पे लिख दूंगा। ओके मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपनी किताबों को अपनी फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर करो। और फाइनल बैटल के लिए आप कैसी किताब को प्रिपेयर कर सकते हो, जब आप पूरे की पूरी चीज को सम अप करने के बाद, समझने के बाद आप उसको ऐड ऑन करो। अब एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक वीक स्टूडेंट कैसे चलाएगा? स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, वो पूरी रॉबिन को रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेगा, वो रॉबिन्स को समझेगा और समझने के बाद उसका जो अर्क है, उसका जो अक्स है, उसको कहाँ चढ़ा देगा सर? पैथोमा के ऊपर। एंड नाउ ही हैज गॉट अ ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स इन दैट वे। तीसरी चीज क्या है सर, कोई भी नॉलेज अगर आपके दिमाग में आता है फौरी तौर पे उसका क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस इंतहाई जरूरी है मौजूदा दौर में। और एक मैं आपको बात बताऊं सर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे यूएसएमएलई की बात करें, प्लैब की, एएमसी की या एनएलई की बात करें, हम पीएमडीसी की, कोई भी एग्जाम है सर, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको स्मार्टर वेज ही अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आप पूरी किताबें याद नहीं रख सकते, आपको चीजें उस टाइम आपके इंस्टेंटली आपके माइंड में आनी चाहिए सर। और जो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमबीबीएस के सर, वो आपके माइंड में पक्के होने चाहिए। अब जब हम कहते हैं ना बच्चों को बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, बच्चे को लगता है बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि स्नेल की नॉट नहीं उठानी है। नहीं, बेसिक्स का मतलब ये है कि आप उसी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। आपको रेगोडोनिक एसिड पाथवे का पता होना चाहिए, आपको सेल्स की टाइप्स का पता होना चाहिए, आपको सेलुलर इंजरी का पता होना चाहिए, आपको इन्फ्लेमेशन का पता होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन है क्या है, अपोप्टोसिस क्या है, नेक्रोसिस, ये सारी चीजें जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी अगर आपको नहीं आ रही सेल की, तो आप क्या बात कर सकते हैं एपिलेप्सी के ऊपर, आप क्या बात कर सकते हैं एंटी रिथमिक ड्रग्स के ऊपर, आप क्या बात कर सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल के ऊपर। अगर आपको कोई बड़ी चीज नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट नहीं पता किसी चीज का, तो ये गलत है। अगर स्टार्ट करना है तो मैं जो इजीएस्ट रिकमेंडेशन दूंगा किसी भी स्टूडेंट को जो अभी स्टार्ट करना चाहता है, हु हैज वेस्टेड अ लॉट ऑफ हिज टाइम, आप फिजियो से स्टार्ट करो। फिजियोलॉजी पूरी नहीं पढ़नी, फिजियोलॉजी के सिर्फ सेल फिजियोलॉजी और मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी के चैप्टर आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है इन द बिगिनिंग। उसके बाद सर फौरी तौर पे आप पैथोमा को पकड़े, पैथोमा के पहले 4 चैप्टर आपने लाजमी करने हैं जनरल पैथोलॉजी के। दे आर मोर देन इनफ। और अगर आप रॉबिन साथ में करना चाहते हैं तो रॉबिन में सर आपको पता होगा ब्लू और ग्रीन कलर के डब्बे होते हैं सर वहां पे, जिनमें समरी लिखी गई है रॉबिन की, बहुत बेहतरीन लिखी गई है। वंस यू आर डन विद बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, देन शिफ्ट टुवर्ड्स फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड एक ऐसी किताब है जिसको कुछ स्टूडेंट्स ने मोर अंडर एस्टिमेट किया है और कुछ ने इसको ओवर एस्टिमेट किया। सर मेरा एक स्टूडेंट है सर, वो पिछले 4 साल से एग्जाम दे रहे हैं सर, फर्स्ट एड को कुछ 17-18 दफा पढ़ चुके हैं सर, लेकिन उसका एग्जाम निकल नहीं रहा है एनएलई के सर। अब उसमें गलती फर्स्ट एड की नहीं है सर, गलती उसके पढ़ने के तरीके में है सर, उसका अंदाज सही नहीं है सर। फर्स्ट एड के अंदर जो टॉपिक लिखा गया है उस टॉपिक को सर्च आउट करो, उस टॉपिक को पैथोमा से पढ़ो, उस टॉपिक को देखो कि पैथोमा में उसके बारे में क्या लिखी गई है पैथोलॉजी के बारे में। अगर उसमें फार्माकोलॉजी है तो कैप्लान को उठाओ, कैप्लान नहीं एटलीस्ट उठानी तो लिपनकॉर्ट चाहिए हमें, लेकिन अगर आप वो नहीं भी उठा रहे एटलीस्ट कैप्लान तो उठाएं आप, ताकि आप उसको कोरिलेट कर सके। फर्स्ट एड के अंदर लिखे गए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सर, उसका टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो फर्स्ट एड के अंदर लिखा गया है। वो टेक्स्ट कहीं और से उठाओ, और कहां से उठाओ? गोल्डन सोर्स से उठाओ, जो आपके गोल्डन सोर्स है। अच्छा, ये जो
सोसाइटी के अंदर इस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स में बुक्स सर्कुलेट होती हैं, जैसे आपने भी पैथोमा की बात की। आपने जो पैथोमा का स्टाइल बताया है वो टोटली डिफरेंट है, जो कि अभी इस वक्त स्टूडेंट्स का रुझान है। मतलब अगर आप रॉबिन्स की बात करें तो रॉबिन्स की तरफ किताब खोलने के लिए लोगों का दिल करता। बड़ी किताब आखिर किसी चीज़ के लिए बनाई गई ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि एक रॉबिन्स की अल्टरनेटिव पैथोमा, कभी भी नहीं हो सकता। नो सर, नहीं हो सकता है ना, आप नेवर इस बात को मानते हैं। सर। आपको नहीं लगता कि ये जो स्मार्ट लर्निंग का टूल इस वक्त सोसाइटी के अंदर एक प्रेवलेंट हो रहा है, इसकी वजह से एक हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन सी डेवलप हो गई है? आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा गलत लेवल पे मिस हो रहा है, यूज हो रहा है इसका? सर स्मार्ट स्टडी का तो ये तो लफ्ज ही गलत हो गया। स्मार्ट हम्म, स्टडी का मतलब शॉर्ट बुक तो नहीं है सर। नहीं है। स्मार्ट स्टडी का मतलब शॉर्ट बुक तो नहीं है। हम्म, स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है, एक एक स्टूडेंट है सर। अब मैं आपको बताता हूँ, जब सेकंड ईयर में मैं सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी याद कर रहा था सर। एम्ब्रियोलॉजी। सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, ओके। सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी वाहिद ऐसा सब्जेक्ट रहा है मेरे एमबीबीएस के करियर में जिसमें चीजें डू नॉट मेक सेंस सर। आउट ऑफ नोवेयर सर एफजीएफ आ जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर सर पीडीजीएफ आ जाते हैं, आउट ऑफ नोवेयर सर। मुझे पता भी नहीं होता कि जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ आ जाता है। और फिर लूपिंग कभी राइट टू लेफ्ट हो रही है सर, कभी लेफ्ट टू राइट हो रही है सर, कभी काउंटर क्लॉकवाइज 270 डिग्री रोटेशन हो रही है, कभी क्लॉकवाइज हो रही है सर। मतलब थिंग्स वर नॉट मेकिंग सेंस फॉर मी। तो मैंने क्या किया सर, मैंने रीड किया, मैंने चैप्टर को रीड किया। एक चैप्टर पूरा रीड करने के बाद उसमें देखा कि इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है। अब कोई भी टॉपिक उठाते हैं सर, लेट से आज अगर स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी में वो स्कीमिया पढ़ना शुरू करते हैं या वो एंजाइना पढ़ना शुरू करते हैं सर, बेशुमार चीजें ऐसी होंगी जो स्टूडेंट्स को पता होंगी। इट इज द चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टू लेफ्ट आर्म, इट इज द पेन ऑफ हार्ट ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड सप्लाई। ये चीजें बच्चों को पता होंगी। क्या नहीं पता होगी सर? शायद एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करना पता हो। क्या नहीं पता होगा सर? शायद उसके साथ में डोब्यूटामीन और एडिनोसिन के कॉन्सेप्ट को ना पता हो। शायद उसको कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का ना पता हो। एकदम मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो रॉबिन से या पैथोमा से, उसी टाइम पे उसको मेडिसिन की किताब से भी पढ़ लिया करो। तो स्टूडेंट्स कहने लगे सर 2 किताबें एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? मैंने कहा यार देखो, अगर स्कीमिया या एमआई रॉबिन्स में ये लिखा गया है कि इट इज द पेन दैट इंक्रीजेस विद एक्सर्शन डिक्रीजेस विद रेस्ट, तो क्या मतलब है इसका कि पैथोमा में ये लिखा होगा कि इट इज द ब्लीडिंग पर रेक्टम? डेफिनेटली नॉट सर, ये वही लिखा गया होगा। फिर स्टूडेंट ने दूसरा सवाल किया, सर जब दोनों में सेम लिखा है तो फिर मैं मेडिसिन की किताब को खोलूं ही क्यों? मैंने कहा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पॉइंट तो अच्छा है इस बच्चे का कि जब लिखा सेम है सर तो मैं दूसरी किताब को कंसल्ट क्यों करूं? क्योंकि दूसरी किताब में 3 से 4 ऐसी चीजें लिखी गई होंगी सर जो कि पैथोमा के अंदर नहीं लिखेगी, रॉबिन्स के अंदर नहीं लिखेगी। जैसा कि कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट हो गया, एसीएस प्रोटोकॉल हो गया सर, आपके पास लेट्स से फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट हो गया सर। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने टाइम को स्मार्टली ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि मॉड्यूलर वाइज स्टडी करें और उसी टाइम पे उसको मिला करके आप अगठे तरीके से चलाएं। ऑलराइट सर, अभी हम आज के लिए स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो एपिसोड पॉडकास्ट का चल रहा है, क्योंकि सर आजकल का दौर ऐसा है कि 10 मिनट से ज़्यादा कोई अपने घर वालों की नहीं सुनता, तो हमारी कौन सुनेंगे? तो हमने इसको ऐसे किया है कि हम इसको सर शिफ्ट पे लेके चल रहे हैं। प्रोग्राम सर इस स्टूडियो में अभी रिकॉर्ड होगा आपका पूरा, लेकिन हम इसको एपिसोड्स में इसको क्या कहते हैं टेलीकास्ट करेंगे या इसको रिकॉर्ड करेंगे और अपलोड करेंगे अपने रॉयल यूट्यूब चैनल पे। तो सर आज के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए आज तक की जो हमने जो बातें की हैं, एक आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, डेफिनेटली मुझे ही मिला और तमाम स्टूडेंट्स को भी। आगे जो हमारी एपिसोड होगी उसमें सर हम लर्निंग मोडेलिटीज़ पे आपके साथ बात करेंगे कि लर्निंग मोडेलिटीज़ क्या होनी चाहिए और क्या लर्निंग मोडेलिटीज़ हैं जो आपको मुनफरिद बनाती हैं, आपसे मुराद किसी भी अच्छे स्टूडेंट को, किसी भी वीक स्टूडेंट से। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप कहीं मत जाइएगा, नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ये हमें दोबारा देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग रॉयल स्टूडियो YouTube channel. Thank you very much.